Hello everyone, welcome to this new episode of बचपन के पिटारे से. I'm going to share a story with you today. It's the story of a young girl whose life changed almost overnight and made her a completely different person from who she was. I'm going to share with you the story of Payal Kapoor, a 22-year-old hotel management graduate who was working at a 5-star hotel when she fell sick and lost almost everything of her health. She was hit by an irreversible medical incident called intracranial hypertension. Now, this young girl was looking forward to a life of great growth on her way to becoming something big, not just in her career, but also having a fulfilling personal life. लेकिन कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई. There was nothing of who she was that was left of her. She lost her eyesight completely. She lost her ability to hear, ability to taste, smell, and even touch. इतना सब खोने के बाद अगर कोई उससे पूछता कि तुम अपनी जिंदगी में अब क्या करोगी, उसके पास कोई जवाब नहीं था. She didn't know whether she would even live or wanted to live or simply end her life. But as it happens, some choices are not ours to make. She decided that she would brave it and fight for her life. Having had to embrace her blindness was not an easy task. सोचो, suddenly एक दिन आप अच्छे भले हो और कुछ ही देर में आपको दिखना बंद हो जाए, आपको सुनाई पड़ना बंद हो जाए, तो आप क्या करोगे? How does one even understand what to do with something like that? But in Payal's case, her support system was extremely strong. She had a very supportive family who was willing to stand by her. Her mother, who she said she lost recently, was her pillar of strength. She was strong, she was resilient, and she taught Payal that the same strength and resilience was present in her, that she could do anything she put her mind to. With motivation like that and support like that, there was no way Payal would have missed out on moving forward. Her mother taught her various things. She taught her how to do things around the house. जो काम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऑलरेडी करते हैं, उसकी मम्मी ने बोला कि तुम घर के काम इतने सारे कर लेती हो, अभी क्या बचा, सिर्फ दिख नहीं रहा ना तुमको, तो कोई बात नहीं. Because by then she had started hearing partially. And उससे हिम्मत और बढ़ी. घर के काम छोटे मोटे करने शुरू किए, सब्ज़ी काटना शुरू किया, थोड़ा बहुत उनसे सिलाई बुनाई सीखी. जो काम देखते हुए किसी को वक्त नहीं था, वो आंखें खोने के बाद में उसने सीखी. सब्जियां कटवाई उसकी मम्मी ने, धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंस घर में आगे पीछे के काम सीखे. Her friends started telling her, you have to step out of the house, but she was afraid to step out of the house because of the insecurity. नहीं दिखेंगे, मैं अपने कदम कहाँ डालूंगी, गिर गई तो मेरा क्या होगा? All these fears crowded her mind, but her support system continued to push her forward.
अकेली नहीं थी वो, उसके साथ बहुत सारे लोग थे। उसकी बहन थी, उसके पापा थे, उसकी बहन और आगे उसके दोस्त, बहुत सारे लोग मिलकर सब उसका सहारा बने। Now, here started a whole new journey of her life. Next, इतने साल बीत गए, 6 साल ऐसे ही बीत गए कि अब क्या करना है, क्योंकि हर वक्त दिमाग में यही बात थी कि शायद मैं फिर से देखूंगी, क्योंकि उसको डॉक्टर्स ने विश्वास ऐसा दिलाया था कि सिंस यू आर यंग, यू आर ओनली 22 years old, तुम शायद क्या पता फिर से देख सको। सो उस छोटी सी उम्मीद को लेकर वो इंतज़ार करती रही, बट एज इट हैपेंड इट वॉज नॉट मेंट टू बी। वंस शी रियलाइज दैट दिस वॉज नॉट मेंट टू बी, घर में बैठे टीवी देखी, टीवी सुनी, लोगों ने किताबें पढ़ के सुनाई, बाहर चले गए, घूम के आ गए, वो सब कोई कितनी देर कर सकता था। इट वॉज टाइम शी डिसाइडेड टू पुट हरसेल्फ इनटू एक्टिव रिहेबिलिटेशन। नाउ रिहेबिलिटेशन में क्या हुआ? It meant that she had to learn how to actually live her life as a blind person. उसने उसमें ब्रेल लिखना पढ़ना सीखा, जो कि बहुत मुश्किल थी, because she was suddenly illiterate. She couldn't read and write anymore because she couldn't see. So with great difficulty and lot of struggle, she learned how to read and write braille. उसके जो टीचर थे, मेंटर थे, वो खुद भी ब्लाइंड थे और उन्होंने बहुत हिम्मत दी, उसको बहुत मजाक किया, उसका मजाक उड़ाया, उसको बहुत इनकरेज भी किया और लड़ाई झगड़ा करके जैसे तैसे करके शी मैनेज टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट ब्रेल। शी मैनेज टू लर्न हाउ टू वॉक इंडिपेंडेंटली यूजिंग अ वाइट केन। और उसको उन्होंने उसकी सबसे फेवरेट चीज़ फिर से वापस दिलाई, जो कि था हर एबिलिटी टू कुक इन द किचन। रिमेंबर, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट थी, उसको खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन अब बिना देखे खाना कैसे बनाए, घर वालों को भी डर लग रहा था। सो हर टीचर केम होम एंड टॉट हर, एंड वंस शी स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू कुक, इट वाज द बिगनिंग ऑफ अ होल न्यू लव स्टोरी। हर लव स्टोरी विथ हर किचन एंड हर कुकिंग। हर पड़ाव पर जहाँ पर लगा कि मुश्किल है, काम नामुमकिन है, उसने एक कदम आगे लिया, कोशिश करी और कुछ न कुछ ज़रूर पाया। इट माइट नॉट हैव बिन व्हाट शी थॉट शी वुड स्टार्ट विथ, लेकिन करते करते उसने देखा कि वो बहुत कुछ कर सकती थी। शी स्टार्टेड वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ रिहेबिलिटेशन हुआ था उसका वहीं पर नौकरी उसने करनी शुरू करी। एंड ओवर देयर शी बिकेम द टीचर। फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट शी बिकेम अ टीचर एंड शी टॉट मेनी अदर पीपल like herself who were blind. and उसके पास जो additional skills थी, उसकी education जो थी, सब उसने वो इस्तेमाल करके लोगों को पढ़ाई लिखाई कराना और बहुत सारी चीज़ों में उनको काउंसल करना, मदद करना करके इट वाज उसको लगा कि हाँ, यहाँ आकर मेरी ज़िंदगी जो है, मतलब जो मैं करती हूँ दैट इज़ ऑल जस्टिफाइड। एंड शी डिड दिस फॉर 6 years. अब उसके बाद में देयर वाज ऑलवेज दिस बर्निंग डिज़ायर कि होटल इंडस्ट्री जो थी, जिसने उसको एक साइड पे कर दिया था बिकॉज शी कुडंट सी एनी मोर, शी लॉस्ट अ करियर बिकॉज ऑफ इट, but she decided that she would try once again, and an opportunity arose to work with a hotel company. And she had a whole new avatar that came out for her over there as a salesperson. So sitting at her desk, she started making sales calls and started talking to clients all over the country, and suddenly she found herself becoming a sales and marketing executive. यहाँ पर एक और चीज़ जो उसको करनी पड़ी थी वो ये थी कि सो फार शी हैड बिन वर्किंग ऑन अ ब्रेल लैपटॉप, कंप्यूटर, छोटा सा कंप्यूटर था उसके पास, बट शी हैड टू गेट ऑन टू लर्निंग हाउ टू यूज़ द रेगुलर पीसी. अब दैट वाज अ ह्यूज न्यू चैलेंज, बट यू नो व्हाट ना, पायल एंड चैलेंजेस, जो चैलेंज आया पकड़ा, उसको साइड किया, सीखा और आगे बढ़ते चले गए. Soon she was working on her computer just like anybody else, using assistive technology called a screen reader. Whatever you see on your screen, ये हमको पढ़ के सुना रहा था.
तो इसकी मदद से पायल ने बहुत कुछ सीखा, लिखना सीखा। सडनली शी वॉज इंडिपेंडेंट। ब्रेल तो लिख पढ़ सकती ही थी, लेकिन ब्रेल वॉज नॉट ईजी फॉर अदर पीपल टू अंडरस्टैंड। इसमें मेन स्ट्रीमिंग हो गई। शी मैनेज टू लर्न हाउ टू मेन स्ट्रीम एंड लर्न हाउ टू स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद अदर पीपल। हर वर्ल्ड ओपन अप। बहुत सारे और लोग मिले, बहुत सारे लोगों के साथ रास्ते में हाथ जोड़े, हाथ इकट्ठे करे और आगे बढ़ती निकल गई। ईमेल्स, इंटरनेट, बहुत सारे नए दोस्त बने, फेसबुक यूज़ किया। सब कुछ धीरे धीरे करते करते नई नई चीज़ें सीखती गई और इसके साथ जो सीखने की तमन्ना बढ़ती ही चली गई। Every time she was given a new opportunity, she went and took hold of that opportunity and continued to grow. In the meantime, life brought her another new thing. She decided that she would also want to advocate for people, many people like herself, जो कि शायद जिनकी आवाज़ उसकी जैसी ना हो, जो कि लिख के पढ़ के भी बाहर लोगों से बात करने में शर्माते हों। But not Payal. She realized that in her ability to write and communicate lay a huge gift for so many people. She started talking about disability, talking about inclusion, became a disability advocate, started writing about her life with disability. लोगों के साथ इंटरेक्ट करते करते दूसरों को खाना पकाना सिखाया। बहुत सारी नए काम उसने जब किए, उसको करते करते उसकी खुद की ज़िंदगी इतनी खुशहाल बन गई। शी वॉज अ टोटली न्यू पर्सन फॉर समबडी हु थॉट कि उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं था। उसकी ज़िंदगी बहुत रिच थी, बहुत ही फुलफिलिंग थी, बिकॉज शी वॉज एबल टू गिव बैक सो मच टू the community of disabled people who had owned her, who had accepted her and had helped her grow in her own life. इतने में एक नया पड़ाव आया उसकी ज़िंदगी में। She got married and शादी हुई तो उसके साथ में आई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि अपना घर संभाला, घर समेटा। उसमें भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, किस तरह से अपने घर को अपने आप समेट के टाइम मैनेजमेंट किया, सीखा कि घर के काम, बाहर के काम सारे के सारे करके किस तरह सब कुछ संभाला जाए और नौकरी भी करनी, घर का काम भी करना। सो जस्ट लाइक मैनी अदर वुमेन, शी started doing all of this very successfully. Unfortunately though, the relationship didn't last for a very long time because there were some differences जिसकी वजह से उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी यहाँ पर ठीक नहीं हो सकती। So it was a sad thing, but once again with the support of her family who thought इतनी नाखुश होने का और इतने खुद के ज़िंदगी जीने का किसी को कोई किसी को ज़रूरत ही नहीं है। Her family always supported her and said, if you're not happy, you deserve a happy life, which is important to move on and do things for your own self. It was a very, very difficult time, but again, what came to her rescue was the support of everyone around her. But एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि कितना ही बाहर से सपोर्ट क्यों ना मिले, जब तक अपने अंदर विश्वास नहीं हो, जब तक अपने अंदर की जो शक्ति है, हम उस शक्ति को अगर हार्नेस ना करें, इफ़ वी डोंट यूज़ दैट स्ट्रेंथ, दैट लिटिल ब्यूटिफुल बर्निंग resilient human spirit that is within us, if we don't recognize and harness that, we will not be able to do anything. And that is exactly what Payal did. She continued to grow, continued to learn new things, and saw that her life was looking nothing like what she thought she would. इतनी मुश्किलें, इतनी सारी मुसीबतें आने के बावजूद भी she managed to move on, चाहे 4 कदम आगे 2 कदम पीछे ही क्यों ना सही, बट चलती का नाम जिंदगी है। इतने में the hotel company की नौकरी she got bored because they weren't giving her any more opportunity. She decided कि इसको छोड़ के अब मुझे कुछ अपना करना चाहिए। उतने में आया पैंडेमिक
और हम सब जानते ही हैं क्या हुआ। तो उस वक्त जो था शायद पायल की ज़िंदगी का सबसे while there were so many difficulties, but as far as her ability to be able to give back to people was concerned, she did most of her work. Online classes, online motivational talks, ऑनलाइन सपोर्ट फॉर अदर पीपल, क्योंकि सब लोग जहाँ पर लॉकडाउन के बाद में एक एक जगह अटक गए थे. सो टू टीच देम हाउ टू कुक, टू टीच देम हाउ दे कुड डू थिंग्स, मेक द बेस्ट ऑफ वॉट एवर वॉज अवेलेबल टू देम. हर वर्ल्ड ओपनड अप वंस अगेन. एंड यहाँ पे शी नॉट जस्ट established herself as a disability advocate but also as a speaker, as somebody who encouraged people to find the best that was available for them and to make the best of a situation that was very grim and scary. यहाँ पर इसी वक्त लोगों की मदद करने के लिए, अपनी डिसेबिलिटी कम्युनिटी में ब्लाइंड लोगों की मदद करने के लिए, शी स्टार्टेड अ पॉडकास्ट कॉल्ड रसोई के रहस्य ऑन यूट्यूब, जिसमें वेरी डिटेल्ड episodes were there about how to work in your kitchen, how to get comfortable. बहुत सारी episodes उसने करे जिसमें कि लोगों को छोटी से बड़े बातों तक उसने सिखाया किचन में अपने आप किस तरह से काम किया जाए. That was, I think, a very, very important moment in her life. Now, after so much, where would life take her? She understood that जिंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ेगा. Things would keep happening, people would come in her life and people would go out of her life. बहुत सारी नई चीज़ें होंगी. Never say die, मतलब सपना देखो और सपना साकार करने की इच्छा रखो. That was the most important thing that she learned. Because ज़िंदगी में जो challenges हैं वो तो कभी ख़त्म होंगी ही नहीं, और इन नए challenges को लेकर ही उसने अपनी ज़िंदगी बनाई. She became the caregiver for her elderly parents, and इसमें भी उसे कितनी ही शांति मिली. And it was unbelievable. People would look at her and say, how can you take care of your parents on your own? You yourself can't see. But people don't realize you don't need to see to be able to do so many things. एक आपकी शक्ति है अंदर आपके जो आपको आगे बढ़ने की confidence देता है. And as you move on, you realize that you can keep going on forever. सिर्फ इसी विश्वास के साथ कि जिंदगी चलने का नाम है. मुझे उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा. आई एम श्योर आपके मन में कुछ सवाल तो होंगे ही, है ना? क्या आप सच में पायल कपूर से मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उनके बारे में, किस तरह से वो अपनी स्पिरिट को हमेशा हाई रखती हैं, किस तरह से खुद को एम्पावर करते हुए दूसरों को एम्पावर करती हैं? या आपके मन में कुछ और सवाल हैं, या आप कुछ कहना चाहते हैं? स्पॉटिफाई पे यदि आप ये एपिसोड सुन रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में आपसे एक सवाल पूछा गया है, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, या उसी सवाल के जवाब में अपने सवाल पूछ सकते हैं, या आप उनसे जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं. आप उनके बारे में हमें ऑडियो मैसेज भी कर सकते हैं. इंस्टाग्राम का जो पेज है बचपन के पिटारे से का, उस पे भी आप मैसेज करके, कमेंट करके आप बता सकते हैं. तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. और यदि आप पायल कपूर से मिलना चाहते हैं तो आप मैसेज करके ज़रूर बताएं. जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खूब खुश रहें. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.